हाय एवरीवन, सो वेलकम टू टुडेस क्लास। सो आज का क्लास हम मोस्टली हिंदी और इंग्लिश मिक्स में करेंगे। सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा थैंक यू एंड बहुत ही ज़्यादा ग्रैटिट्यूड मेरे तरफ से। हम लोगों का फैमिली जो है वो 10,000 प्लस अब हो गया है, तो थैंक यू एवरीवन फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मैं कोई डेडिकेटेड वीडियो इसके लिए नहीं बना पाया बिकॉज आई वॉज वेरी मच बिजी इन अदर वर्क। सो उसी के लिए मैं क्लास भी अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। आज मैंने सोचा कि चलिए एक क्लास अपलोड कर देते हैं। और जब मैं एसएपी देखा तो जो हमारा ऑनलाइन सर्वर है वो सर्वर काम नहीं कर रहा है, तो इसके वजह से जो रेगुलर क्लास है वो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है। तो आई विल ट्राई टू do the class recording in some time. Okay, so don't worry about it, it will continue. Okay, so basically the problem is right now I'm getting very less time because I'm pretty much busy with my scheduled work and other work. So that's why it is very difficult to upload the classes. So जब मैं फ्री था उस टाइम में मैं क्लासेस अपलोड कर देता था आपके लिए। तो मोस्टली उसके वजह से आपने फरवरी में देखा होगा बहुत लिमिटेड क्लास, शायद 8 to 10 क्लासेस अपलोड हुए होंगे और उसमें से भी रेगुलर क्लासेस शायद 4 से 5 रहे होंगे, राइट? तो डोंट वरी अबाउट दैट। सो I will try to create some classes in the weekend and I will try to upload them. Okay, don't worry about it. It will come regularly. So first of all, very much thank you to all of you who have subscribed, and जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है please do subscribe. Okay, those who are not subscribed yet and you are willing to learn SAP MM, you want to learn SAP EWM, or you want to learn SAP MM or WM or any kind of things that is related to logistics, so you are interested to learn on those paths, stay tuned with us, stay with us, just subscribe and just hit the bell icon so that any new class are coming, so you will be notified. Okay, so that's all about the 10,000 subscriber, that is the celebration. So maybe we will be having a class, maybe we will be having a session in the weekend, so we can cut some, let's see if we can cut some cakes or something, or let's hope for a meetup. I'm planning for a long period of time. I'm planning for a meetup. So maybe hopefully right now I'm in Odisha, so maybe we can plan something for Odisha or we can meet up somewhere in Odisha. So if you are interested or if you want to connect, then we can connect sometime. Means we can have a meet and greet session. Okay, so that's all about the other topics. So right now we are not coming here for just talk. We will be continuing about the um, we will learn something today also. So that is main focus of ours is to learn something. So today we will be learning something. So let's go into the learning side. Okay. So now here you can see there is something has been written as SAP best practices for SAP S4 HANA Cloud Public Edition. Okay, so you can see there is a best practices has been written. What do you mean by best practices? What is the best practices? How you can help you? So ये सारी चीजें जो है ये आज हम कवर करेंगे. So mostly I will be taking this class in Hindi and English mix. So we have started this channel with the Hindi classes and the response was very good, and English people are also there. So I will not say like Hindi is the best or English is the best. So we will be continuing in Hindi and English for today class only. Okay. So next coming classes we will be continuing in English, and maybe if required then we can upload some classes in Hindi also. Okay, those who are not able to understand in English, means it's difficult, I know. बहुत सारे लोगों का communication skills जो है वो थोड़ा सा
कमजोर होता है तो हिंदी में समझने के लिए बेहतर रहता है जो हिंदी समझने वाले रहते हैं। आई विल नॉट से दिस फॉर द means if we say about the south side people, if I say south means it will means I have stayed all over the India and mostly into the southern side of India. Okay, so I have seen people, some people understand Hindi also. Okay, so no, don't worry about no worries about the Hindi or English. But today class we will be continuing in Hindi and English because today is the 10,000 subscriber session. Okay, so that's why it is we have started in Hindi. So हम यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी में भी बात कर लेंगे. Okay, so don't worry, we will be continuing the class in English for the further session. Okay, so first एसएपी बेस्ट प्रैक्टिसेस होता क्या है? सो एसएपी बेस्ट प्रैक्टिसेस यानी ये एसएपी का जो खुद का एक जो उनका इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस रहता है, तो वो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में हेल्प करने के लिए आपको कस्टमर को अंडरस्टैंड करने के लिए, मतलब कस्टमर को समझाने के लिए, ओके, to make your customer understand what is the SAP. So this is basically a standard process and standard layout. Everything will be on standard and it will explain the process of SAP S4 HANA to your clients or to your business. So why this is important? Because whenever you are going for any kind of implementation project, then you need to explain your business because they don't know anything about SAP. So you have to explain or you have to showcase them what is SAP, why, how they can be benefited from the SAP implementation, what should be their benefit of implementing SAP, what should, how their work area should be reduced, or what is the benefit they are getting. So everything you have to explain. So to simplify your work or to simplify, let's say, implementation process or to help the clients, SAP has made this best practices so that you can use this for demonstration purpose. You can use this to explaining purpose. You can use this to let's say your client can also use this to understand what is the SAP and how it is working and how it should work for them. Everything will be there. Okay, and also for you as a SAP consultant or SAP any kind of consultant, here you can see the multiple things are there: application platform and infrastructure, asset management, database and data management, finance, human resource, IT management, manufacturing, R&D, engineering, sales, service, solution specific industries, sourcing and procurement, supply chain, everything is there. Okay, so if we see this is a uh, if we see this is the version is 2308, this is the SAP S4 HANA version 2308, this is the current version. I believe this is running the current version or maybe it is the last year's version. Okay, country or region, it is related to Germany, you can select that one. So first we will see how you can come to the SAP best practices, how you can find the SAP best practices, how you can utilize it. Maybe if required, then we can have multiple sessions for it. ठीक है, तो अगर जरूरत है तो हम यहाँ पे 2-3 सेशन भी इसके ऊपर लेंगे एसएपी बेस्ट प्रैक्टिसेस को जानने के लिए, आपके इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में आपको हेल्प करने के लिए. ओके, तो आप इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? हाउ टू फाइंड दिस आउट? जस्ट गो टू अ स्क्रीन, गूगल में जाइए, गूगल में जाके SAP MM बेस्ट प्रैक्टिसेस जो भी आपका मॉड्यूल है, लेट्स से आपका SAP MM है, WM है, EWM है, या फिर आपका SAP का अरीबा है, सेल्स SD मॉड्यूल है, या फिर आपका कोई भी मॉड्यूल है, आप बस यहाँ पे SAP अपना मॉड्यूल नेम बेस्ट प्रैक्टिसेस लिख के एक सर्च कर दीजिए. तो यहाँ पे आपको काफी सारे आंसर्स मिल जाएंगे. यहाँ पे आप देख सकते हैं SAP कम्युनिटी, जो कि SAP का खुद का एक ब्लॉग है. तो यहाँ पे आपको एक SAP प्रैक्टिसेस फॉर MM प्रोसेसेस का एक ब्लॉग यहाँ पे दिया है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं. यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये help.sap.com. यहाँ पे ये जो
लिंक है, आप इस लिंक को क्लिक करोगे तो आपको ये लेके जाएगा बेस्ट प्रैक्टिसेस के साइट पे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एसएपी बेस्ट प्रैक्टिसेस, तो ये साइट है एसएपी बेस्ट प्रैक्टिसेस। यहाँ से आके आप ये जो एसएपी बेस्ट प्रैक्टिसेस एक्सप्लोरर को यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे या तो आप इतना थ्रू करके आ सकते हैं, या फिर अगर आपको डायरेक्टली इसका पाथ पता है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे ये क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा me.sap.com/प्रोसेस नेविगेटर। तो आपको प्रोसेस नेविगेटर में आना है। यहाँ पे आपको ऐसा एक स्क्रीन दिख जाएगा, ऐसा ये एक इसका होम स्क्रीन है, तो यहाँ पे आपको एक स्क्रीन दिख जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं होम, कैलेंडर, रिपोर्टिंग, कस्टमर सक्सेस, फाइनेंस एंड लीगल, पार्टनर सोल्यूशन, पार्टनरशिप, portfolio and products, sales and marketing, services and support. So everything is here. So basically this is SAP हेल्प साइट है। ठीक है, एसएपी का हेल्प साइट है, आप यहाँ पे आके अपना काम कर सकते हैं। आप इसके लिए आपको लॉगिन होना चाहिए, मैंने अपना एक लॉगिन दिया है। यहाँ पे आप लॉगिन आपका यूजर आईडी क्रिएट होना चाहिए me.sap.com पे, जो कि एक नॉर्मल, आप अगर आप कोई कंपनी में काम नहीं कर रहे हो तो आप पी टाइप का जो पर्सनल टाइप का यूजर आईडी क्रिएट कर सकते हैं। आज अगर आप कोई कंपनी में काम कर रहे हैं और आपका कंपनी के थ्रू से कोई यूजर आईडी बना है तो वो एस यूजर आईडी होता है, नॉर्मली उसको सुपर यूजर आईडी बोलते हैं। वो सुपर यूजर आईडी जब आपको मिलता है तो आप काफ़ी सारे चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपका पी टाइप यूजर आईडी है तो आपको यहाँ पे बहुत लिमिटेड चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कुछ फ्री चीज़ें जो होगा वो आप देख सकते हैं, लेकिन काफ़ी सारे चीज़ें हैं जो आपको पी टाइप के यूजर आईडी में नहीं मिलता है। ओके, तो बेसिकली अगर आप काम कर रहे हैं और अगर आप कोई कहीं पे जाके सपोज आप इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में काम कर रहे हैं तो आपको एक एस यूजर आईडी बनाया हुआ मिलेगा, या तो आपके टीम के लिए एक एस यूजर आईडी होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमको चाहिए एस यूजर आईडी टू क्रिएट अ टिकट टू एसएपी। बहुत सारे चीज़ें जो हम करना चाहते हैं, एसएपी के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, हमको एक एस यूजर आईडी चाहिए। तो एस यूजर आईडी आपको एक मिल जाएगा, या तो आपके टीम को या फिर इंडिविजुअली आपको मिल जाएगा। वहां पे आप जाके अपना लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप होम पेज पे आ गए, व्हेन यू कम टू दिस होम पेज, जस्ट scroll down to bottom. Okay, so you can scroll down to bottom. Here you can see SAP S/4HANA Cloud Public Edition. Here you can see SAP S/4HANA Cloud Private Edition. So यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या मॉड्यूल्स यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉन स्टैंडर्ड स्कोप क्या है, और यहाँ पे कौन सा रिलेटेड सर्विसेज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा चीज़। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉल्यूशन प्रोसेस चेंज बाय कैटेगरी, तो यहाँ पे कितना चेंज हुआ है, तो यहाँ पे अपडेट 153 अपडेट हुआ है। और यहाँ पे न्यू एडिशन, मतलब यहाँ पे अपडेट मतलब प्रोसेस सेम है, कुछ थोड़ा सा एडिशन उस पे दिया है। न्यू प्रोसेस कुछ ऐड किया गया है, 14 processes has been added, no change, 454 processes are there. So overall this is a लाइक क्या क्या चीजें नई आई हैं, क्या क्या पुराने चीजें हैं, तो ये उसके ऊपर है। वी विल नॉट गो इनटू दैट डिटेल्स। ओके, तो यहाँ पे सिमिलरली आप देख सकते हैं ये प्राइवेट एडिशन के लिए है। तो अभी एसएपी ये दो टाइप का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, बोथ ऑफ द थिंग्स आर इन क्लाउड। सो फर्स्ट जो है वो है पब्लिक एडिशन का क्लाउड है, और दूसरा जो है वो प्राइवेट एडिशन का क्लाउड है। तो पब्लिक एडिशन यानी कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी स्टैंडर्ड ओनली, सो यू हैव टू यूज द स्टैंडर्ड। आप कोई भी स्टैंडर्ड चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते, कुछ भी मॉडिफाई नहीं कर सकते, जो भी स्टैंडर्ड है वही रहेगा। अगर आपको कोई भी प्रोसेस में चेंजेस चाहिए तो आप एसएपी को रिपोर्ट कर सकते हैं। एसएपी आपके हिसाब से जो भी नया चीज़ें लाना है तो एसएपी ऐसे कुछ नई एडिशन आपके लिए बना देगा। अगर वो काफ़ी सारे चीज़ें, अगर बहुत सारे लोगों को वो नेसेसरी रहेगा तो एसएपी थोड़ा सा ऐड कर देगा। और जो क्लाउड प्राइवेट एडिशन में होता है, प्राइवेट एडिशन में आप नॉन स्टैंडर्ड चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, प्रोसेस को यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से प्राइवेट एडिशन रहता है। तो प्राइवेट एडिशन जो रहता है वो
नॉर्मली आपके क्लाइंट स्पेसिफिक रहेगा। अगर आप क्लाइंट प्राइवेट एडिशन लेना चाहता है तो वो ले सकता है, अगर पब्लिक एडिशन लेना चाहता है तो वो जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, राइज विथ एस4 हाना में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इन डिटेल्स, इन डेप्थ। अगर आपको वो सारा चीज़ जानना है तो आप जाके वो वाला वीडियो देख सकते हैं, राइज विथ एस4 हाना में। ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वर्जन्स है, कौन सा वर्जन्स है। तो यहाँ पे एसएपी बेस्ट प्रैक्टिसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्लाउड प्राइवेट एडिशन, क्लाउड पब्लिक एडिशन। तो पब्लिक एडिशन और प्राइवेट एडिशन में क्या क्या चीज़ें हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये वर्जन है 2023 एंड ये है 2308। तो अगर आप यहाँ पे क्लाउड वर्जन देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसको क्लिक कीजिए। So you can click over there and you can come to this screen. So we have started from this screen, right? So we have started from this screen only. So now here you can see version is 2308, SAP best practices for cloud public edition, and region is Germany. Here you can select the different region also. आपका क्लाइंट कौन सा रीजन में आता है आप वो रीजन सिलेक्ट करके देख सकते हो सकता है कि कुछ कुछ रीजन के लिए कुछ कुछ चीज़ें अवेलेबल ना हो या फिर प्रोसेस में कुछ चेंजेस हो, तो वो रीजन वाइज भी डिपेंड करता है। तो आप जब भी यहाँ पे आए, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लीजिए अपना रीजन को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डिफरेंट लाइन ऑफ बिजनेस है वो यहाँ पे लाइन आउट किया गया है। तो मोस्टली जो P2P साइड होता है या फिर परचेजिंग प्रोक्योर टू पे साइड होता है, वहाँ पे हमारा पहला जो है वो है सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट, दूसरा जो है वो सप्लाई चेन है। तो इन दोनों में मिला के हमारा ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स आ जाएंगे। सप्लाई चेन मोस्टली इट विल कवर द WM part and EWM part that will cover in the supply chain. ओके। एंड सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट, सो सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट में आपका SAP MM का साइड विथ अरीबा का साइड भी यहाँ पे इंक्लूडेड है, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए जो सोर्सिंग जो हो रहा है, डायरेक्ट सोर्सिंग या फिर सोर्सिंग रिलेटेड जो भी काम हो रहा है, वहाँ पे एसएपी में या तो अरीबा या तो एसएपी कूपा को काम में ले रहे हैं। ठीक है, कब काम में लेते हैं, क्या काम आता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो मोस्टली यहाँ पे सोर्सिंग एंड प्रोक्योर में आपको सारा एमएम रिलेटेड टॉपिक मिल जाएगा मोस्टली, एंड सप्लाई चेन में आपको इन्वेंट्री रिलेटेड एंड डब्ल्यूएम ईडब्ल्यूएम रिलेटेड टॉपिक्स आपको मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 103 टॉपिक्स है, यहाँ पे 81 टॉपिक्स है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा प्रोसेस यहाँ पे आउटलाइन किया गया है। तो फर्स्ट आप देख सकते हैं ये लेटर वाइज है, यानी कि अल्फाबेटिकली है। तो यहाँ पे ABC ऐसा करके आएगा, तो दिस इज नॉट द फर्स्ट थिंग। सो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट थिंग है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट है आपका एडवांस इंटर कंपनी स्टॉक ट्रांसफर। स्टॉक ट्रांसफर क्या है, यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे अपडेट एक आया है। देन यहाँ पे एनालिटिक्स, परचेज ऑर्डर, विजिबिलिटी एंड प्रोक्योरमेंट स्पेंड। सो दिस इज एनालिटिक्स ऐप इज देयर, सो एनालिटिक्स ऐड किया गया है। ऑटोमेटेड इनवॉइस सेटलमेंट, तो ये एक प्रोसेस है ऑटोमेटिक, ऑटोमेटेड इनवॉइस सेटलमेंट यहाँ पे ऑटोमोटिव के लिए दिया गया है। ऑटोमेटेड परचेज टू पे एसएपी अरीबा कॉमर्स ऑटोमेशन है। तो अगर आप यहाँ से कुछ भी जानना चाहते हैं, बैच मैनेजमेंट है, तो ये आप अगर यहाँ से कुछ भी देखना चाहते हैं, सपोज मैं देखना चाहता हूँ कि ये एडवांस इंटर कंपनी स्टॉक ट्रांसफर प्रोसेस कैसे काम करता है, अगर मैं देखना चाहता हूँ तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे ये आपको लेके आ जाएगा इंटर कंपनी स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर के स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या क्या चीजें मिल जाएगा। पहला चीज जो आपको मिल जाएगा, यहाँ पे एक डायग्राम मिल जाएगा या फिर आपको एक फ्लो चार्ट मिल जाएगा। प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है और प्रोसेस कहाँ पे एंड होता है। अगर हम इसको थोड़ा सा एनलार्ज करें, आपको अभी दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोसेस कहाँ से शुरू हो रहा है, परचेजर रिसीविंग प्लांट। तो जो रिसीविंग प्लांट है वो परचेजर है। पहले वो क्या करेगा, इंटर कंपनी स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर क्रिएट करेगा। फिर इंटर कंपनी स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर से यहाँ पे आउटबाउंड डिलीवरी फॉर स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर, फिर यहाँ पे बैच चेक करेगा, फिर यहाँ पे
पिक करेगा एंड पोस्ट गुड्स इशू फॉर आउटबाउंड डिलीवरी। देन यहाँ पे इंटरनल ट्रांसफर ऑर्डर, इंटरनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल डेट ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। फिर ये जो आपका आउटबाउंड डिलीवरी प्रोसेस होगा, इससे फिर इनबाउंड डिलीवरी यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा, ऑटोमेटिकली ये क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो इसको, इस जो फ्लो डायग्राम है इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। आप इसको यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, डाउनलोड करके आप देख सकते हो, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं परचेजिंग, सॉरी परचेजर, शिपिंग स्पेशलिस्ट जो आपका शिप करेगा, देन आपका इंटर सेल्स, ठीक है, इंटरनल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, ऑर्डर कंपनी, रिसीविंग स्पेशलिस्ट, वेयरहाउस क्लर्क, बिलिंग क्लर्क, अकाउंट पेएबल, अकाउंटेंट। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज काम को सेग्रीगेट किया गया है, कौन सा काम कौन करेगा, किसके अंडर आता है, सारे चीजें यहाँ पे सेग्रीगेट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो प्रोसेस होता है, यहाँ पे ये आउटबाउंड डिलीवरी या तो आप क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे सेल्स ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। जो अगर हमारा जो परचेजिंग का प्रोसेस होता है विथ एसडी शिपिंग मेथड आता है, तो यहाँ पे आप सेल्स ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। फिर सेल्स ऑर्डर से यहाँ पे जो इनवॉइस आएगा, प्रोफोर्मा इनवॉइस आएगा, वो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोसेस का फ्लो जो है ऐसे काम करता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक प्रोसेस फ्लो डायग्राम मिल गया। ये प्रोसेस फ्लो डायग्राम से आप अपने क्लाइंट्स को या फिर कस्टमर को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसे हमारा यहाँ पे प्रोसेस काम करता है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे आपको दिया गया है एक प्रोसेस डायग्राम, ठीक है। एंड कहाँ पे होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्प्ले सप्लायर इनवॉइसिंग, यहाँ पे डिस्प्ले होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो टैब है वो है यूज्ड इन का। तो आपको यहाँ पे ये कहाँ पे यूज होता है, ये आपको बताया है ये कहाँ पे यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक्सीलरेटर, ठीक है। तो ये एक्सीलरेटर में क्या होता है, बेसिकली एक्सीलरेटर यानी कि आपके हेल्प के लिए जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो फर्स्ट चीज़ है सेटअप इंस्ट्रक्शन। आप अगर इसको क्लिक करोगे तो आपको एक पीडीएफ का डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको क्या क्या सेटअप करना है वो सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ पे सेटिंग अप एडवांस इंटरकंपनी स्टॉक ट्रांसफर, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको करना है वो सारा चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन, डिफाइन बिजनेस पार्टनर फॉर कंपनी कोड, डिफाइन शिपिंग डेटा फॉर प्लांट, settings for an advanced intercompany process for supplier invoice, assign tax code configure, program parameters, assign program parameters, define business rule for output determination, activate value chains for purchase order NBIC। तो यहाँ पे मास्टर डेटा सेटअप कैसे करना है, प्रिपरेशन ऑर्गेनाइजेशन लेवल में क्या करना है, आपको ये सारा चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगा, ओके। ये आपका कॉन्टेक्स्ट है। तो ये भी जो सारी चीजें हैं यहाँ पे आप दे सकते हैं। यहाँ पे प्रीरिक्विजिट भी क्या है बता रहा है, क्या है प्रोसीजर, क्या है आपको कैसे करना है, आप फ्योरी में जाके कर सकते हैं, या फिर आप जो आपका जीयूआई है जीयूआई में भी जाके यहाँ से इसको कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये एग्जाम्पल के हिसाब से भी आपको शिपिंग पॉइंट, प्लान, शिपिंग कंडीशन, स्टोरेज लोकेशन, ये सारा चीज़ें आपको दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा आपको क्या क्या चीज़ें कॉन्फ़िगर करना है। सो जो नया, जिसने कभी भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया होगा या फिर एस4हाना इम्प्लीमेंट नहीं किया होगा या फिर एस4हाना का क्लाउड एडिशन अगर इम्प्लीमेंट नहीं किया होगा, तब भी उसको हेल्प मिल जाएगा, वो यहाँ से ये डॉक्यूमेंट्स को फॉलो करके अपना काम कर सकता है, राइट। तो यहाँ पे ये हो गया सेटअप इंस्ट्रक्शन। देन आपको यहाँ पे टेस्ट स्क्रिप्ट भी मिल जाएगा, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको वर्ड डॉक्यूमेंट आपको एक मिल गया। तो ये वर्ड डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि आपको यहाँ पे टेस्ट कैसे करना है, ठीक है।
तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये सारा चीज़ें आपको मिल जाएगा। आप कैसे स्टॉक क्रिएट करोगे, टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे टेस्ट बनाओगे, तो ये सारा कुछ चीज़ें आपको मिल जाएगा। तो अगर हम इसको थोड़ा सा अगर बड़ा करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आई बिलीव इट इज विजिबल और एल्स आई विल ऐड समवेयर एल्स दिस डॉक्यूमेंट सो दैट इट विल बी हेल्पफुल। सो अभी के लिए तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आप कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद यहाँ पे कैसे हमको टेस्ट करना है, ठीक है। ओपनिंग ए न्यू एमएम पीरियड, क्रिएटिंग ए स्टॉक इन द सप्लाइंग प्लांट, सप्लाइंग प्लांट में आपको पहले स्टॉक बनाना है, राइट। स्टॉक बनाने के बाद आप जाके वहाँ पे इशू करोगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोसीजर, यानी कि टेस्ट स्टेप जो है, लॉग इन करना है, फिर एक्सेस टू द ऐप, फिर इनपुट मूवमेंट टाइप, फिर एंटर मटेरियल, फिर क्वांटिटी डेटा। तो ये आपको पूरा जो टेस्ट का डेटा है वो आपको पूरा टेस्ट का डेटा यहाँ पे दे दिया है, राइट। तो यहाँ पे आपको पूरा टेस्ट का डेटा यहाँ पे दे दिया है। फिर आप यहाँ पे आके नेक्स्ट स्टेप, टेस्टिंग स्टेप्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे पूरा आपको टेस्ट का डेटा भी मिल गया, राइट। तो आपको सेटअप मिल गया, आपको टेस्ट का डेटा मिल गया। फिर आपको यहाँ पे टेस्ट स्क्रिप्ट अगर चाहिए तो आप यहाँ पे टेस्ट स्क्रिप्ट भी देख सकते हैं। ये हो गया आपका टेस्ट स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये आपका टेस्ट स्क्रिप्ट हो गया। आप यहाँ पे टेस्ट स्क्रिप्ट रन कर सकते हैं और यहाँ पे अपना डेटा जो है वो ऐड करके रख सकते हैं। आपका कौन सा चीज़ें यहाँ पे है, आप यहाँ पे उसको रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारा चीज़ें जो हमने देखा था वो सारा टेबल फॉर्मेट में है। तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सारा चीज़ें डालने के बाद आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं आपका आउटपुट क्या है, आपका रिजल्ट क्या आया है। आप ये सारा चीज़ यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे सेटअप इंस्ट्रक्शन मिल गया, टेस्ट स्क्रिप्ट मिल गया, और यहाँ पे आपको टेस्ट स्क्रिप्ट का एक्सेल फॉर्मेट भी मिल गया है जिसको आप अपलोड कर सकते हो अपने एएलएम में, ठीक है। एसएपी क्लाउड एएलएम में आप इसको अपलोड कर सकते हैं। एएलएम यानी कि एप्लीकेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, जो जिसको हम यूज़ करते हैं मोस्टली टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो वो स्क्रिप्ट उसके लिए होता है, ठीक है। आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं एएलएम में। वो टेस्ट स्क्रिप्ट अपलोड होते ही वहाँ पे आपको क्लियर फॉर्मेट में आपको क्या क्या चीज़ें टेस्ट करना है वो सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप नीचे डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं कि क्या चीज़ें ओवरव्यू है, प्रोसेस फ्लो क्या है, बिजनेस बेनिफिट क्या है, ये सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। और ये जो सारी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है डिस्क्रिप्शन वगैरह, वो आपको हेल्प करेगा, आपको स्लाइड बनाने के लिए, आपको पीपीटी बनाने के लिए, अपने क्लाइंट के लिए, अपने कस्टमर के लिए पीपीटी बनाने के लिए ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। देन यहाँ पे अगर सॉल्यूशन कंपोनेंट में हम आए तो ये सॉल्यूशन कंपोनेंट एसएपी S/4HANA है, ठीक है। कौन से रीजन के लिए है वहाँ पे दिया गया है, कौन से इंडस्ट्री का रिलेवेंस है वो दिया गया है। एरोस्पेस में है, एग्रीकल्चर बिजनेस में, ऑटोमेटिव, हाईटेक, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये सारी चीज़ों के लिए ये जो प्रोसेस है आपका काम करेगा। नेक्स्ट सॉल्यूशन कैपेबिलिटी कहाँ पे है, इनवॉइसिंग प्रोसेसिंग, परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, गुड्स मूवमेंट के लिए, ठीक है। तो ये तीन चीज़ों के अंदर ये आता है, ठीक है। तो अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हो तो ये आपको हेल्प करेगा इनवॉइस प्रोसेसिंग में, परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग में, एंड गुड्स मूवमेंट प्रोसेसिंग में आपको हेल्प करेगा। तो मोस्टली ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल गया। तो सिमिलरली क्या रहता है, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा बैक करें, ओके। सो वन मोर थिंग हियर, इफ यू कम टू द मेन स्क्रीन, सो हियर दिस इज द मेन स्क्रीन। अगर आप मेन स्क्रीन में आते हो तो मेन स्क्रीन में यहाँ पे नीचे आपको कुछ एक्सेलरेटर्स मिल जाते हैं। ये एक्सेलरेटर आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे जनरल डॉक्यूमेंट्स में आप देख सकते हैं अकाउंट डिटर्मिनेशन लोकल, बिजनेस ड्रिवन, कॉन्फ़िगरेशन क्वेश्चनेयर। तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे ड्यूरिंग द सेशंस विथ योर क्लाइंट्स और कस्टमर। जब भी आप क्लाइंट और कस्टमर के साथ जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग का
सेशंस रहता है, उस पे आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे क्वेश्चनेयर। ठीक है, आपको कौन सा क्वेश्चन आपको पूछना है। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ये आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे लेके जाएगा। मैंने ऑलरेडी क्लिक करके रखा है, तो यहाँ पे आप आ सकते हैं। आपको यहाँ पे मिल जाएगा ये एक्सेलरेटर। ठीक है, ये आपको एक्सेलरेटर मिल जाएगा। तो एक्सेलरेटर में यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल के लिए, एसएपी फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग, आर&डी, रिटेल, सेल, सर्विस के लिए यहाँ पे दिया गया है। तो हमारा जो पार्ट है वो सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट है एंड सप्लाई चेन है। ठीक है, तो अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट, तो ये एक क्वेश्चन आपको डाउनलोड हो जाएगा। इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। Okay, so maybe in the next class we will be looking into the next part. So today we will be looking into this question. So यहाँ पे आप देख सकते हैं business different configuration questionnaire, sourcing and procurement. Purpose यहाँ पे क्या है? The objective of this document is to obtain customer information to prepare the system before fit to standard workshop and to use further discussion during the workshop. These questions makes fit to standard process prescriptive and guided by the process with the business questions to driven business decisions and respective configuration in SAP S/4HANA Cloud. The customer is required to complete and return the document a week prior to the workshop. Note, this document does not include configuration activities that are specific to localization topic. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? दिस इज, ये डॉक्यूमेंट की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, फिट टू स्टैंडर्ड का जो वर्कशॉप होता है, जो हमारा रिक्वायरमेंट गैदरिंग का वर्कशॉप होता है, उससे पहले आपको ये जो डॉक्यूमेंट है इसको आपको कस्टमर को देना है। कस्टमर उसको पढ़ के वहाँ पे जो भी आंसर है वो आपको दे देगा, या फिर आप डायरेक्टली जाके जब आप प्रिपरेशन करते हैं अपना फिट टू स्टैंडर्ड वर्कशॉप करने के लिए, तो बिफोर दैट आप क्या कर सकते हैं, आप एक क्लाइंट के साथ आप कॉल पे या फिर वर्कशॉप में जा सकते हैं। नॉर्मली वर्कशॉप वी कॉल इट अ वर्कशॉप व्हेन एवर वी आर डूइंग द रिक्वायरमेंट गैदरिंग। तो वहां पे आप जाके उनको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिख जाएगा रिलेटेड टू टॉपिक, आप क्या क्वेश्चन उनको पूछेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट क्रॉस फंक्शनलिटी, तो क्या क्या चीज़ें हैं आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं सप्लायर इवोल्यूशन एंड प्रोक्योरमेंट रिलेटेड एक्टिविटी। तो यहाँ पे सप्लायर इवोल्यूशन के बारे में, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है। सप्लायर इवैल्यूएशन प्रोसेस इज स्टार्टेड बाय रिक्वेस्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अप्राइजर्स। टू डू दिस यू सेंड अ ईमेल टू योर अप्राइजर्स। ओके, तो यहाँ पे टॉपिक का डेफिनेशन दिया गया है। आप यहाँ पे क्या पूछ सकते हो, हाउ डू यू इवैल्यूएट एंड अप्रूव द सप्लायर फॉर योर प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। आप कैसे अपने सप्लायर को इवैल्यूएट करते हैं और कैसे उसको अप्रूव करते हैं। नेक्स्ट अगर हम जाएंगे सप्लायर इवैल्यूएशन प्रोक्योरमेंट रिलेटेड। ओके, ठीक है, हम नेक्स्ट जाते हैं परचेजिंग ग्रुप। तो परचेजिंग ग्रुप यहाँ पे क्या बताया है, ए परचेजिंग ग्रुप कोड इज ए 3 डिजिट कोड दैट रिप्रेजेंट अ बायर और ग्रुप ऑफ बायर्स। द परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन इज फर्दर सबडिवाइडेड इनटू परचेजिंग ग्रुप्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे बाइंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है परचेजिंग ग्रुप का। तो परचेजिंग ग्रुप क्या होता है, फिर उसके बाद आप पहले आपको ये डेफिनेशन समझाना है उनको, आपके बिजनेस को, आपके क्लाइंट को, आपको ये डेफिनेशन समझाना है। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछना है, हाउ मेनी बायर्स विल बी जनरेटिंग परचेजिंग डॉक्यूमेंट फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन। ईच बायर विल बी रिप्रेजेंट as purchasing group in the SAP system. The standard system has a three purchasing group, triple 001, 002 and 003. If more purchasing groups are needed, please provide how many. तो आप यहाँ पे पूछ रहे हो कि आप कितना कौन लोग हैं जो परचेजिंग के लिए मतलब परचेज करते हैं। हमारा यहाँ पे हम उनको परचेजिंग ग्रुप बोलते हैं। तो परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन में फर्दर आपके परचेजिंग ग्रुप रहेगा। तो ये इंडिविजुअल पीपल रह सकते हैं या फिर ग्रुप ऑफ पीपल रह सकते हैं। तो आप कैसे उनको डिवाइड करते हो, आपको कितना परचेजिंग
ग्रुप चाहिए तो उसके ऊपर आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो। नेक्स्ट सपोज हम यहाँ पे देखते हैं। ओके, अप्रूवल सेटिंग फॉर परचेज रिक्वेजिशन। हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखा गया है, रिलीज स्ट्रेटेजी डिफाइंस डिफरेंट केपीआई टू ट्रिगर द डिफरेंट अप्रूवल वर्कफ्लो। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि रिलीज स्ट्रेटेजी हम यहाँ पे लगाएंगे डिफरेंट डिफरेंट केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स टू ट्रिगर द डिफरेंट अप्रूवल वर्कफ्लो। तो आप कैसे वर्कफ्लो लगाना चाहते हैं वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चन क्या पूछेंगे, do purchasing requisition go through an approval process? Are there multiple approval labels for the documents go through? तो आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे कि आपका परचेज रिक्विजिशन जो है उसको कोई अप्रूव करता है क्या? अभी आप जो करंट काम कर रहे हैं उस पे आप परचेज रिक्विजिशन पे काम करते हैं क्या? जब परचेज रिक्विजिशन बनाते हैं उसको कोई अप्रूव करता है क्या? अगर अप्रूव करता है तो कितने लेवल पे अप्रूव करते हैं? तो यहाँ पे बेसिकली आपके लिए आपके इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस को इजी करने के लिए सारा चीज़ यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है। तो आपको क्वेश्चन भी डिफाइन नहीं करना है, कुछ डिफाइन नहीं करना है, यहाँ से सारा चीज़ आप लेके यूज़ कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आपका अम, रहेगा फोकस में रहेगा, तो वो सारी चीज़ आप यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे लेके आप बना सकते हो, राइट। तो बेसिकली तो बेसिकली ये एक सेशन था हमारा बेस्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर। कमेंट इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, अगर आप इसका और एक सेशन चाहते हैं और या फिर इसका मल्टीपल सेशंस चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइए। आई विल ट्राई टू मेक सम सेशंस ऑन दिस आल्सो। ओके, so it is definitely it will depend on the availability of time for me, or definitely I will be trying to create the classes for you. Okay, so do let me know in the comments if you like the class. So please subscribe the channel and please do like the video and share to your friends who are willing to learn SAP MM and they want to learn SAP MM for free. We are giving all the SAP MM and WM related topic, and most probably in coming session we will be providing the SAP EWM classes also, everything under free. Okay, only there are two things which are chargeable. One is if you are going for a live classes from me, so that will be chargeable. If you are willing to go for a real-time class, then that will be chargeable. Other than that, everything like your um, let's say your resume preparation, your resume comparison, or let's say your resume checking, your mock interviews, this all facilities are free. Okay, you don't have to pay a single thing for that one. If you want to check your resume, you can send me your resume. So I will check and let you know if something is missing, something needs to be improved. If you want to have a mock interview session, then you can do let me know in the comments. And you can ping me on WhatsApp anytime you can ping me. I will reply you back as per my time availability. I am trying to reply everyone as soon as possible, but the thing is I'm not getting proper time to reply you back. So um, be patient to that one. If you are asking some of the question, if you are having SAP related questions, so rather asking me directly, you can ask in the group. There are two groups are there. One is a SAP for beginners, one more is helping hands classes are there. So there are two classes are there, so you can ask your questions over there. Okay, and one more thing, don't means I have seen many people they have joined to 5 or 6 groups, still they are asking to join in the group. So ऐसा मत कीजिए प्लीज। जो भी नए लोग हैं उनको अगर आप एक ग्रुप में हो तो मैं सारा जो इन्फॉर्मेशन है मैं वो ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, जितना ग्रुप में मैं हूँ उतने में शेयर कर देता हूँ। आप फिर भी उस ग्रुप में आके आप ज्वाइन करना चाहते हो, आई नो आपको आप इंटरेस्टेड हो ज्वाइन करने के लिए, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा आपको, आप ऑलरेडी कोई ना कोई ग्रुप में हो तो अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप वो ग्रुप में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू आंसर यू ओवर देयर, एंड प्लीज लेट अदर्स ज्वाइन द ग्रुप। बहुत सारे लोग जो हैं वो ज्वाइन करना चाहते हैं ग्रुप, लेकिन कोई स्पेस नहीं है करके वहाँ पे ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। तो प्लीज
लोगों को अलाउ कीजिए ज्वाइन करने के लिए. डोंट सेंड द रिक्वेस्ट इफ यू आर ऑलरेडी joined multiple groups. Let's say I can say there are some people who have joined in 4 to 5 groups and still they are willing to join this group, and they are the silent member. That is most serious thing. They are the silent member. They don't participate in anything. They just want to join the group. So that is the really difficult thing. Okay, so if you are willing to participate, if you are willing to learn, if you want to answer some people question, then you are most the most welcome to the group. You can join the group and you can answer some of the queries, or you can ask some of the queries, but be at least active on the group. Anywhere you are there, you need to be active. Okay, so then only you will be learning. Okay, if you are not active, then most of the chances are there you will not learn most of the things. So that's it for today's class. We will not make it larger. So it's almost 40 for 43 minutes is there. So that's it for today. Bye bye and take care and keep learning. And please do comment if you like to have more sessions on this SAP best practices.